Jai Sri Ram everyone, welcome back to my channel English with Desi Madam. My name is Rita and how are you doing guys? I hope you all guys are doing absolutely fine. So friends, in today's video I'm going to discuss with you how to create some question in English and how to ask some question in English, because it's very important to do conversation with someone. If we create some question, if we ask some question in English, so our conversation will be very easy. Okay, we feel more confident. Okay, not only always all the time giving answer. Okay, if someone asks me a question, then I will give answer in English. No, it's not good for you, because what is your ultimate goal? Your ultimate goal is to be fluent in English. So for to be fluent in English, it's very important to create some question in English. Also, you have to know some knowledge about how to create some question in English, how to ask question in English. So in today's video I'm going to share with you some some rules depend on the all the tenses. So without any further delay, let's get into the topic. But before going to the topic, it's my humble request to all of you, if you haven't subscribed my channel yet, so please do subscribe my channel, because these things gives me boost to create more and more valuable content for you every day. So watch the video right till then, don't skip the video. Okay friends, so let's get into the topic. Okay friends, so in today video depend on the my subscriber demand. And actually I have received comment in my comment section, and the comment was that, ma'am, please make some video on the question, how to create some question in English and how to ask question in English. Okay, so that's why I am choosing this topic in today video. Okay, so without any delay, let's get into the topic. Okay, so first we have to practice on simple present tense. So for this what you need to do, I know आपके पास पूरा नॉलेज है, आपको आपके पास टेंस का you have a full knowledge about all the tenses. Okay, but what you need to do, you need to make some structure in your mind. So first we talk about simple present tense. Okay, does, see, यहाँ से हम शुरू करते हैं. क्या वह ये करती है, क्या वह करता है, क्या वह ये करता है, क्या वह ये करती है, क्या वह गाता है, क्या वह नाचती है, क्या. ओके, सो फॉर दिस यू हैव टू नो सम structure. Do I, do you, do we, do they, does she, does he, does Rita. Okay, now you can make some verb. Okay, I'm going to use only one verb. Okay, मैं एक टीचर हूँ और मैं स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ. ओके, सो आई एम अ टीचर एंड आई टीच स्टूडेंट्स. ओके, क्या मैं एक टीचर हूँ, क्या मैं स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ. सो इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस इन इंग्लिश. ओके, एम आई अ टीचर, डू आई टीच स्टूडेंट. In this way you can make some sentences in English in your mind. Okay, क्या वह एक डॉक्टर है, क्या वह इलाज करता है. Is he a doctor? Does he treat patient. In this way you can practice in English in your mind. It's very important to do practice. Okay friends, do I, does she, does he, do we, do they. सो मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं लोगों का इलाज करती हूँ. आई एम ए डॉक्टर एंड आई ट्रीट्स पीपल, एंड आई ट्रीट पीपल. अब आप क्वेश्चन पूछिए, क्या आप डॉक्टर हो, क्या आप लोगों का इलाज करते हो. आर यू आर डॉक्टर और डू यू ट्रीट पीपल. ओके, अपने आप क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं डॉक्टर हूँ, क्या मैं इलाज करती हूँ. एम आई अ डॉक्टर. ओके, एंड डू आई ट्रीट पीपल. क्या वह आपका दोस्त है, क्या वह आपकी मदद करता है. Is he your friend? Does he help you? Okay? हाँ, वह मेरा दोस्त है, वो मेरी मदद करता है. Yes, he is my friend and he helps me a lot. Okay? In this way you can practice in your mind. Okay? Now, क्या वह एक स्टूडेंट है, क्या वह पढ़ाई करता है. Is he a student? तो does he study? Okay? क्या वह स्कूल जाता है. Does he go to school? क्या वह आपके साथ है. इज ही विथ यू. क्या वह आपके साथ रहता है. डज ही लिव विथ यू. सो दिस इज द वे टू स्पीक. ओके, दिस इज द वे टू प्रैक्टिस इन इंग्लिश.
now let's talk about simple past tense. Simple past tense, we have some structure like did. Okay, did I, did you, did we, did they. There is only one question mark, that is did. Okay, क्या उन्होंने आपकी मदद की? डिड ही हेल्प यू? क्या मैंने तुम्हारी मदद की? डिड आई हेल्प यू? क्या उसने तुम्हारी मदद की? डिड सी हेल्प यू? क्या वह वहां गया? डिड ही गो देयर? क्या आपने सुना? डिड यू लिसन? क्या आप सुनोगे? विल यू लिसन? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ओके, द स्ट्रक्चर इज दैट will I, will she, will he, will you, will they. Okay, will we, will you come, will you go, will you walk, will you come. So use different kind of verbs and start your practice. Do practice and see the magic. Okay, so आपको जैसे मैं बता रही हूँ, आपको इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है at home. ओके, आफ्टर समटाइम्स यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश. ओके, क्या आप बोल सकते थे? कुड यू स्पीक? क्या वह बोल सकता था? कुड ही स्पीक? क्या वह दौड़ सकता था? कुड ही वॉक अर्लियर? क्या वह पहले इंग्लिश बोल सकता था? कुड ही स्पीक इन इंग्लिश अर्लियर? ओके, हाँ, जब वह स्कूल में था तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था. यस, व्हेन ही वॉज इन द स्कूल सो ही स्पीक इन इंग्लिश सो फ्लुएंटली. ओके, क्या आप इसको इंग्लिश पढ़ा सकोगे? विल यू बी एबल टू टीच मी? ओके, विल यू एबल टू, क्या आप ऐसा काम कर सकोगे? विल यू एबल टू. नाउ सो आपने पूरे क्या देख लिए? आपने पूरे प्रेजेंट टेंस देख लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, एंड सम मॉडल वर्ड्स लेके लाइक कैन, कुड एंड विल यू एबल टू. नाउ अब कंटिन्यूअस टेंस की बात करें. लेट्स टॉक अबाउट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल कंटिन्यूअस टेंस. Is, am, are. Is he, is she, are you, are they. Okay, are we. Okay, मैं आपको आपसे बात कर रही हूँ. I am talking with you. क्या मैं आपसे बात कर रही हूँ? Am I talking with you? Okay, आप क्या कर रहे हैं? Okay, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Are you listening me? Okay, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Are you listening me? So do practice in this way. Make some sentence in your mind and start to use your some sentence in English. Okay, now are you playing cricket? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था? Past tense. Was, were, was he, was she, was any name, were you, were we, were they. क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? कहाँ पढ़ा रहा था? Okay, was I teaching? Was I studying? Okay, this is the way of practice. You can practice in English. आपकी प्रैक्टिस ही आपको सब कुछ बनाएगी, आपकी प्रैक्टिस ही आपको फ्लुएंट बनाएगी. Okay, future continuous tense. Will we, ing. Okay, will I be teaching you? क्या मैं आपको पढ़ा रही होंगी? Will I be teaching you? क्या मैं आपको सुन रही होंगी? Will I listening you? Okay, क्या वह यहाँ आ रहा होगा? Will he be coming here? Okay, and so the next thing is that should I, should we, should you, should should you go there? Okay, क्या तुमको जाना चाहिए? क्या तुमको वहां पे अवश्य जाना चाहिए? तो must I, must you, must सो क्या उसको अवश्य वहां जाना चाहिए? मस्ट ही गो देयर. ओके, क्या उसको वहां जरूर जाना चाहिए? मस्ट ही गो देयर. ought to means ought to used for the advice. है. ओके, you ought to follow the rules of practice in English. ओके, क्या मुझे ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए? I ought to follow traffic rules. क्या मुझे यहाँ आना चाहिए? Okay, I ought to come here. So this is the way to do practice. Okay, let's talk about perfect. Okay, simple perfect, past perfect and future perfect. For this you have to do some some
सेंटेंस इन योर माइंड, यू हैव टू थिंक सम सेंटेंस इन योर माइंड. क्या आप सेंटेंस बना चुके हो? हैव यू मेड सेंटेंसेस? क्या आप वहां जा चुके हो? हैव यू गॉन देयर? क्या वह यहाँ आ चुका है? हैज ही कम हियर? ओके. क्या वह लिख चुका है? हैज ही रिटन? क्या उसने सेंटेंसेस बना लिए? हैज ही मेड सम सेंटेंसेस? ओके. क्या वे वहां जा चुके हैं? ओके. हैव दे गॉन देयर? सो ऐसे ही आप कहेंगे, क्या आप वहां जा चुके थे? ये पास्ट वाला सेक्शन हो जाएगा. हैड यू गो देयर? क्या आप सेंटेंसेस बना चुके थे? हैड यू मेड सेंटेंसेस? हैड यू मेड सेंटेंसेस व्हेन आई कॉल्ड यू? हाँ, मैं एक सेंटेंस बना चुका था जब आपने मुझे कॉल किया. यस, आई हैड मेड सम सेंटेंसेस व्हेन यू कॉल्ड मी. If you're asking some question in English, then do practice how to answer in English. So in this way you can easily fluent in English. Okay, but the main thing is that you have to practice. Practice ही आपको fluent बनाएंगी, nothing. Okay, actually I'm going to invite you to do practice each and every day. It's very important to do practice. Now let's talk about future perfect tense. क्या कल तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा? विल आई हैव डन माई वर्क टुमारो? क्या कल तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ? विल आई हैव डन वर्क टुमारो? क्या वे कल पहुँच गए होंगे? क्या तुम कल वहाँ पहुँच चुके होगे? विल यू हैव गॉन देयर टुमारो? यस, आई विल हैव रीच देयर टुमारो. ओके. सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है. और आपको नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैज़ टू, हैव टू, हैड टू. हैज़ टू, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, करना पड़ता है, तो इसी के क्वेश्चन कैसे करने पड़ेंगे? ओके. तो क्या आपको बोलना, इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस इन इंग्लिश. ओके. क्या मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ते थे? क्या आपको सेंटेंसेस बनाने पड़ते थे? हैड यू मेक सम सेंटेंसेस इन इंग्लिश? ओके. हैड यू टू मेक सम सेंटेंस इन इंग्लिश? ओके. डिड यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता था? क्या आपको यहाँ आना पड़ता था? डिड यू हैव टू कम हियर? क्या आपको स्टेज पर आना पड़ता था? डिड यू हैव टू कम ऑन द स्टेज? ओके. हाँ, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी. यस, आई हैव टू लर्न इंग्लिश. ओके. क्या मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी? ओके. सो दिस इज द पोर्शन ऑफ फ्यूचर. विल आई हैव टू? क्या मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी? विल आई हैव टू लर्न इंग्लिश? हाँ, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी. यस, आई विल हैव टू लर्न इन इंग्लिश. क्या उसे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी? विल सी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश? क्या उसे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे? दिस इज वे टू डू प्रैक्टिस. एंड द लास्ट वी हैव गिवन यू परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके. नाउ परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल परफेक्ट टेंस, यू नो, हैज, हैव, बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. नाउ क्या तुम 2 दिनों से मेरा वीडियो देख रहे हो? ओके. हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियो? क्या तुम 2 दिनों से मेरा वीडियो देख रहे हो? फॉर 2 days. ओके. ऐसे ही आपको पास्ट में और ऐसे ही आपको फ्यूचर में इसकी प्रैक्टिस करना है. क्या आप 2 दिनों से बात कर रहे थे? ओके. हैड यू टॉकिंग टू मी फॉर 2 days? ओके. क्या आप बात कर रहे होगे? आप 2 घंटे से बात कर रहे होगे. ओके. विल यू हैव बीन, ओके, विल यू हैव बीन टॉकिंग टू मी, ओके, फॉर 2 hours? नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मेक सम WH क्वेश्चन. आपको कुछ नहीं करना है. आपने जिस तरह से इसकी प्रैक्टिस की है उसके आगे केवल आपको WH के कुछ वर्ड्स रख देने हैं. जैसे, क्या आप पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? आप पढ़ाई क्यों करते हो? वाई डू यू स्टडी? आप पढ़ाई कब करते हो? व्हेन डू यू स्टडी? ओके. क्या आप जाते हो? डू यू गो? आप क्यों जाते हो? वाई डू यू गो? आप कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? सो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस इन इंग्लिश. ओके. क्या आप लिख सकते हो? कैन यू राइट? आप क्यों लिख सकते हो? वाई कैन यू राइट? क्या आप यहाँ आ सकते हो? कैन यू कम? आप कैसे आ सकते हो? हाउ कैन यू कम? ओके. हाउ कैन यू मेक सम सेंटेंसेस? आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? हाउ कैन यू मेक सम सेंटेंस इन इंग्लिश? सो डू प्रैक्टिस ऑल द सेंटेंसेस इन
ओन सेल्फ, ओके, बिकॉज प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी. नो वन कैन परफेक्ट यू, ओनली योर प्रैक्टिस कैन परफेक्ट यू in English. Only your practice will be make you fluent in English. Okay, so friends, that's all I wanted to share with you in this video, and I hope you like my video. If you did so please give it a like to share with your friends and family, and let me know in the comment box how did you like my video, because I love to read your comments. So friends, we will see you in the next video. Till then, Jai Siya Ram.